It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Good evening everybody. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to one and all. तो बच्चों आ गए हैं हम लोग पावर सिस्टम का अगला लेक्चर लेके, दैट इज द डीपीपी ऑन सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। तो बेटा आपको मैंने सिमेट्रिकल पूरा करा दिया है, हर एक टेक्निक उसके बारे में बता दी है। फेजर डायग्राम, फॉल्ट करंट, फॉल्ट एमवीए, लोडेड सिस्टम, नो लोड कंडीशन, सारी चीजें ए टू जेड हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों को कितना क्लियर हुआ है, आप लोग को कितना समझ आया है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं यार। इसके लिए ये डीपीपी सेशन काफी काम आने वाला है, तो मचा के रख देंगे। बहुत ज्यादा फन, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब यार देखो, ये सब क्रेडेंशियल अपनी जगह हैं, they highlight whatever I have done throughout my life, but what matters the most is what we are doing right now. पहले बेटा जो किया सो किया, आज क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लोग एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं इन द फील्ड ऑफ गेट एंड डीएससी, जिसके अंदर बेटा आपको हमने एनेबल कर दिया है कि आप भी टॉप रैंक ला सकते हो, आप भी एक सपना देख सकते हो विदाउट हैविंग द रिसोर्सेज। अगर आपके पास बेटा पॉकेट में पैसा नहीं है कोई कोचिंग अफोर्ड करने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर हेयर जिससे कि आपकी तैयारी एक बेस्ट वे में आगे बढ़ सके और आपको सारे टॉप एजुकेटर्स का कंटेंट एक सिंगल प्लेस मिल सके। I have arranged all the top educators on a single channel so that you can learn from the best and you can be the best. You can be the best. ठीक है? To be the best, you need to learn from the best, and that is why this team is constantly growing. अब देखो यार, YouTube पे तो एक फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन साइड बाय साइड Unacademy has also created a free platform for our students in which they get special classes, they get quizzes, they get test series, they get practice sessions and they get Unacademy Combat. ठीक है? तो बेटा Unacademy Combat एक बहुत उच्च दर्जे का कंपटीशन होने वाला है on 16th of December 6 PM। तो इसमें बच्चे आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, हर क्वेश्चन पे रैंकिंग आपको दी जाएगी, रियल टाइम रैंकिंग देखोगे, रियल टाइम लीडर बोर्ड देखोगे, and the one who wins they can win great prizes. Other than that my friend, अगर आपको ये सारे फैसिलिटीज अवेल करने हैं तो you have to register for the combat using the code अंकित ESE। combat में आ जाओ, Unacademy ऐप डाउनलोड करके और कोड यूज कर लेना अंकित ESE, you will get enrolled, it is free of cost। और देखो मेरी फ्री क्लासेस का लिंक यार यहां मिल जाता है tinyurl.com/ankit ESE। तो इसके अंदर आपको मेरी सारी स्पेशल क्लास जो बेटा मैंने आज तक ली हैं या जो मैं आगे लेने वाला हूं सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। जो मैं आगे लेने वाला हूं दे विल बी अवेलेबल इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, अपकमिंग स्पेशल क्लास। और जो मैं ले चुका हूं दे विल बी अवेलेबल इन द सब्जेक्ट वाइज फोल्डर। तो इस लिंक को जरूर विजिट करना मेरे भाई, सो दैट यू कैन लर्न व्हाटएवर इज द बेस्ट, you can learn
द बेस्ट कंटेंट, द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। केशव बेटा क्रिसमस से पहले करा दूंगा स्टेबिलिटी तक पूरा, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट थिंग इज द वीडियो बुक। बेटा इलेक्ट्रिकल और ECIN के लिए इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक, जिसके अंदर आपको इस चैनल के, ठीक है, जिसके अंदर आपको इस चैनल के सभी लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, नोट्स साथ में आपको सब एक जगह मिल जाएगा बेटा, bit.ly/GateLive। तो यहां आपको सारे लेक्चर, सारे नोट्स, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ मिलेंगे, एंड देन यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड यू कैन गेट द टॉप रैंक दैट यू एवर हैव बीन ड्रीमिंग फॉर। तो बेटा जो सपना देख रहे थे ना, वो सपना पूरा कर सकते हो इस लिंक पे जाके। और बेटा मैं इसको कल अपडेट कर दूंगा गौरव, डोंट वरी, कल मैं अपडेट कर दूंगा। यू विल गेट ऑल द नोट्स फॉर द लास्ट 2 वीक्स, ठीक है। अब देखो अगर यार प्लस पे आते हो तो यू गेट द लाइव क्लास बाय ऑल द टॉप एजुकेटर, you get their daily practice paper, you get the test series, you get the question bank, you get weekly quizzes, okay, you get crash course, rank improvement batch and doubt clearing। तो बेटा एक टॉपर बनने के लिए जितना कुछ रिसोर्स चाहिए वो सब आपको बच्चे एक जगह मिलेगा, दैट इज अनअकैडमी प्लस। और आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है। आइकॉनिक क्या देता है? प्लस के सारे बेनिफिट देता है, अलोंग विद अ पर्सनल कोच जो कि आपको डे इन डे आउट गाइड करता है रिलेटेड टू योर स्ट्रेटेजी एंड मेक श्योर कि भाई आप ट्रैक पे रहो, आप अपने रास्ते से इधर उधर ना भटक जाओ, वरना बेटा रैंक से दूर चले जाओगे। तो वो कोशिश करता है कि आप रैंक की ओर आगे बढ़ो। तो वो आपका स्टडी प्लानर बनवाता है, ठीक है, स्टडी प्लानर बनवाता है, पूरी स्ट्रेटेजी बनवाता है। और एवरी 2 वीक्स, ठीक है, एवरी 2 वीक्स आपके साथ एजुकेटर का, टॉप एजुकेटर का सेशन लिया जाता है। जैसे कि मैं लेता हूं हर 2 हफ्ते में बच्चों के साथ एक जूम कॉल और मैं उनकी क्वेरीज लेता हूं, दैट इज द स्टडी बूस्टर सेशन। और बेटा यहां पे आपको टेस्ट का अलग से एनालिसिस करके दिया जाएगा, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे विद द थ्योरी एंड द क्वेश्चन बैंक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मिलेगा बेटा डाउट क्लियरिंग विद इन द सेम डे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ बेटा एक कोड से, दैट इज अंकित ESE। इस कोड से आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती हैं। चाहे तो हम बात कर लें फ्री प्लान की, चाहे हम बात कर लें प्लस की, और बच्चे चाहे हम बात कर लें आइकॉनिक की। एवरीथिंग यू गेट अंडर 1 सब्सक्रिप्शन यूजिंग 1 कोड, ठीक है। तो यार ECE का कॉम्बैट तो अभी प्लान नहीं है, बट चलो मेरे दोस्त, सबसे पहले कंप्यूटर को बता दो पासवर्ड इस सेशन का। आपको पता है क्या लिखना है? आपको पता है बेटा क्या लिखना है? ठीक है, जल्दी से लिख दो यार चैट के अंदर। एंड देन क्वेश्चंस की बरसात होने वाली है। क्वेश्चंस बेटा बरसेंगे चारों तरफ से बरसेंगे, ठीक है। सुमन बेटा मेरे लेक्चर्स देख लो डिजिटल के, मैंने प्रोपोगेशन डिले पूरा कवर किया बच्चे, उसमें एक बार जाके देखो, डिजिटल की पूरी प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर्ड है। यस, लेट्स क्रैक इट एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट। तो बच्चे पहला क्वेश्चन ट्राई करो यार। पहला क्वेश्चन, अ 3-phase 3-wire overhead transmission line having a self reactance of J.5 and mutual J.1, positive sequence voltage दी है, the positive sequence current of phase B of ABC sequence। चलो जल्दी से बताओ, आ 3-phase 3-wire लाइन सेल्फ और म्यूचुअल रिएक्टेंस दी है, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज दी है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पूछा गया है आपसे, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आपसे पूछा गया है। जल्दी से बता दो यार, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स? कौन सा सही आने वाला बच्चों? कम ऑन एवरीवन, कौन सा सही आने वाला है? जल्दी से मुझे बताओ। अरे मुझे क्या पता मेरे भाई, कॉम्बैट मैं कंडक्ट नहीं करा रहा हूं खुद से पर्सनली। कॉम्बैट अनअकैडमी का एक इनिशिएटिव है, तो ECE में स्टूडेंट्स कम होंगे प्लेटफॉर्म पे, इसलिए नहीं कराया गया ECE का, ठीक है। सिद्धार्थ मेरे भाई, आज तुम्हारे दोस्त गायब दिख रहे हैं यार, अपने दोस्तों को तो बुला के लाओ, ऐसे कैसे चलेगा? अकेले कैसे लड़ोगे यार? चलो क्या आ रहा है आंसर? बी, ठीक है, चलो बी। अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वी विल फाइंड आउट Z which is J XS minus XM,
तो क्या आएगा J 0.5 माइनस 0.1, मैंने बताया था ना ZS माइनस ZM, J 0.4, ठीक है। अब IA1, तो देखो वोल्टेज है 1.5 एंगल 30, इसको हमने डिवाइड किया 0.4 एंगल 90 से, तो ये कितना हो जाएगा 3.75 एंगल माइनस 60 डिग्री पर यूनिट। तो IB1 क्या होगा यार, IB1 देखें जरा, इससे 120 डिग्री लैग करेगा, तो बेटा ये तो आंसर डी आ रहा है, बी थोड़ी आ रहा है। द आंसर इज डी, ठीक है, आंसर इज डी, ठीक है भाई। पावर सिस्टम का कौन सा पार्ट स्पेशल में है बेटा, लोड फ्लो एनालिसिस और पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आपका स्पेशल में है, ठीक है। कुलदीप कह रहे हैं ये क्या बात हुई, ईसीई का नहीं है बेटा, ईसीई का कॉम्बैट ही तो नहीं है, एक फ्री इनिशिएटिव ही तो नहीं है, ईसीई के टीचर्स हैं, ईसीई की स्पेशल क्लास है, ईसीई का कोर्स है। कॉम्बैट से थोड़ी ना डिफाइन होता है कि कौन सी ब्रांच चलानी चाहिए और कौन सी नहीं चलानी चाहिए। ये क्या लॉजिक हुआ, किस चीज से जोड़ रहे हो, ठीक है। चलो चलो भाई अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। The positive sequence reactance network of a synchronous generator connected to the infinite bus by a step up and a step down transformer along with the overhead line on 100 MVA 13.2 kV generator is shown symmetrical RMS current, ठीक है। symmetrical RMS current कितना आएगा गौरव, जीरो सीक्वेंस में बेटा XS प्लस 2XM आता है, XS प्लस 2XM, सेल्फ प्लस ट्वाइस द म्यूचुअल। गगन बेटा बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए इस मंथ में, बहुत कुछ बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने टीम मीटिंग की है, बताएंगे आप लोगों को क्या करने वाले हैं यूट्यूब पे, लेकिन आग लगा देंगे, ठीक है, मजा आने वाला है। और लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी का सेशन मैं ले चुका हूं यार ऑलरेडी, उसको देख लेना। अल्फा 0 बता रहे हैं, आंसर इज बी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी लोग भी जल्दी से बताओ। कम ऑन एवरीबॉडी, बाकी लोग बताएं यार, एक आंसर आया अभी तक मेरे पास, कम ऑन। इतना टाइमिंग में डिफरेंस कैसे भाई, इतना टाइमिंग में डिफरेंस कैसे कि एक बच्चा दे दिया और बाकी अभी कोई नहीं दे पाया। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। लास्ट 7 डेज में क्या करना है शौर्य, टाइम टू टाइम बताऊंगा बेटा। अभी तो मैं आपको ये बता चुका हूं लास्ट 2 मंथ्स में क्या करना है। अब कल के लिए आप सभी लोगों को एक तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट, क्योंकि कल आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीपीएससी और वाइजैक का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। आयुष बेटा फाउंडेशन का चैनल अलग बना दिया है, चैनल अलग बना दिया है फाउंडेशन का, तो अनअकैडमी इंजीनियरिंग फाउंडेशन है। चलो देखें तो यार देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बताया है और फॉल्ट एट बस 2, सिमेट्रिकल करंट सप्लाइड बाय जनरेटर फॉर अ फॉल्ट एट बस 2। तो ये बताना है यार जनरेटर कितना करंट सप्लाई करेगा। देखो जनरेटर का करंट बच्चे मुझे बताना है, तो नो लोड कंडीशन में इसको 1 एंगल 0 ले लो ईएमएफ को, और फॉल्ट तक की रिएक्टेंस है 0.25, तो -J4 पर यूनिट, तो 4 इंटू बेस कितना लेना है भाई 100 MVA 13.2 kV। बताना जरा कितना आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से कैलकुलेटर लगा के, क्या आ रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बता दो यार, जल्दी से। $17.49, तो आंसर आया सी। क्या कर रहे हो मेरे भाई, इतने इजी क्वेश्चंस में गलती कर रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो। द फॉलोइंग फिगर
shows the single line diagram of a power system with all reactances marked in per unit on the same base. The system is at no load when a three-phase fault occurs on the HV side of the transformer T2. HV side ये दिखाया है ना. The fault current will be, इसको ना मिडल में मत मानना. देखो ये वाला ट्रांसफॉर्मर ऑब्वियसली आपका स्टेप अप होगा क्योंकि ट्रांसमिशन से पहले स्टेप अप करते हैं, और दूसरा वाला आपका स्टेप डाउन होगा. तो बेसिकली फॉल्ट ना आपको यहां लेना है एचवी साइड पे, यानी जस्ट बिफोर द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. इंजीनियरिंग मैथ्स किससे पढ़े यार? अगर यूट्यूब चैनल पे पढ़ना है तो पल्लव सर का कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथ्स का कोर्स पढ़ा है, काफी डिटेल में है, आप वो देख सकते हो. ठीक है. उस पे लास्ट 3 मंथ से क्लासेस नहीं है. तो बेटा रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने बताई तो है, लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटेजी करवाई तो है एक वीडियो के अंदर, तो आपको मिल क्यों नहीं रहा है? और गगन बेटा रिवीजन के लिए मैं डेली 8:30 बजे आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, उसमें आया करो. कल सुबह 10 बजे कराऊंगा क्वेश्चंस का सेशन कोर सब्जेक्ट का. बेटा कमांड ऐसे ही बनेगी, जितने भी मैं क्वेश्चंस के सेशन ला रहा हूं उससे जुड़े रहो. मैं स्पेशल क्लास में डेली आपको 30 सवाल करा रहा हूं, डेली 30 क्वेश्चंस. समझ रहे हो? 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा डेली के लिए. प्रवीण बेटा गेट के बाद क्यों हटाएंगे इसे, ऐसा क्या है? जल्दी से यार आंसर दो. आज मैं देख रहा हूं आप लोग का ना माइंड काफी ज्यादा डाइवर्टेड है, आज आप लोग क्वेश्चंस पे फोकस नहीं हो. हाँ पल्लव सर का कंप्लीट मैथ्स है. यस द आंसर इज सी. अब देखो हाई वोल्टेज साइड पे पूछा है फॉल्ट करेंट. ठीक है. द सिस्टम द फॉल्ट करेंट विल बी. तो देखो यार इसका ना रिएक्टेंस डायग्राम बनाओ. सबसे पहले हमारा जनरेटर आया, जनरेटर में बच्चे ईएमएफ भी है और जनरेटर में रिएक्टेंस भी है. देन फिर आया हमारे पास ट्रांसफॉर्मर J.08, फिर आया हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन J.2, ठीक है. और फिर यहां पे तो देखो फॉल्ट आया है. फिर देखो मोटर है ना, मोटर को मैंने बताया था कभी भी सिंक्रोनस मोटर को इग्नोर मत करना, बुरा मान जाती है अगर उसे इग्नोर करोगे. ठीक है. अब बच्चे देखो फॉल्ट करंट कैसे निकालोगे, बहुत इजी है यार. मैंने आपको बताया था जब फॉल्ट आ जाए तो बेटा सारा करंट फॉल्ट में जाता है, ऐसे सारा करंट फॉल्ट में जाता है. तो फॉल्ट में ना दो सोर्सेस से करंट आएगा. IF is IFG plus IFM 1 by कितना आ रहा है ये? ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. सी आ गया आंसर. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से यार, इसका तो जल्दी से दे दो. इसमें टाइम नहीं लगाना है बेटा, इसमें टाइम नहीं लगाना है. ये आप बहुत फास्ट दे सकते हैं. दिस यू कैन आंसर विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा बेटा. क्वेश्चन को उड़ा देना है, ऐसे क्वेश्चनों को ना देखते ही उड़ा देना है, निपटा देना है एक बार में. कम ऑन एवरीबॉडी. आयुष बेटा उस पे धनाश्री मैम ले रही हैं क्लास बेटा. मैं एक एक टीचर को पर्सनली जानता हूं. धनाश्री मैम मैथ्स की क्लास ले रही हैं फाउंडेशन वाले चैनल पे, आप जाके चेक तो करो. वो स्पेशल क्लासेस में भी मैथ्स करा रही हैं, बल्कि अभी मैं उनको इस चैनल पे भी लाने वाला हूं, क्रिएट्रिक्स चैनल पे. आप लोगों के लिए बेटा मैं जनवरी के अंदर AAI का कोर्स लेके आने वाला हूं. ठीक है. यूट्यूब पे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा. AAI का कोर्स आने वाला है. ठीक है. डोंट वरी, आपको कहीं कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. मृत्युंजय बेटा इसी चैनल पे ना सोनू गुप्ता सर की नेटवर्क पड़ा हुआ है हिंदी में.
एक बार चेक करो इसी चैनल पे नेटवर्क बाय सोनू गुप्ता सर्च कर लेना या नेटवर्क बाय सोनू लाल, वो सर ने पूरा नेटवर्क पढ़ा है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, एक बार चेक करना। 3-phase fault current at the terminals of a generator will be reduced by maintaining large air gap, ठीक है, by maintaining small air gap, by connecting series capacitor। देखो यार, अगर बच्चे आप एयर गैप बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज एयर गैप, तो आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस। ऑब्वियस ही बात है यार, एयर गैप बढ़ेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? फ्लक्स होता है ना, तो फ्लक्स कम हो गया। अगर बच्चे फ्लक्स कम हो गया, आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया, तो XAR कम, विच मीन्स एक्सेस कम। अगर बेटा एक्सेस कम हो गया आपका, तो फॉल्ट करंट इंक्रीजेस, फॉल्ट करंट इंक्रीजेस। तो आंसर शुड बी बी। आंसर ए नहीं होगा। लार्ज एयर गैप से बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट उससे फॉल्ट करंट नहीं कम होता, ठीक है, फॉल्ट करंट नहीं कम होता। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। मृत्युंजय बेटा 2022 के लिए दोबारा से नेटवर्क लगेगा, हिंदी में लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है, दोबारा से लगेगा। ये बात क्लियर है मृत्युंजय? अभी जैन फेब के अराउंड लगा देंगे यार, एक बार ना ये 2021 वाले लोगों का निपट जाने दो, पहले इन लोगों पे फोकस कर लेना जो इसी साल देने वाले हैं यार, उनका करियर अभी ज्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है, उनका अभी ज्यादा मैटर कर रहा है, तो एक बार उनका निपटा देते हैं, फिर फुल फोकस 2022 और 23 वाले बच्चों पे करेंगे। फुर्सत से आप लोगों को पढ़ाएंगे एक एक सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट इस साल हिंदी में मिल गए हैं, अगले साल वो इंग्लिश में भी मिलेंगे, और जो इंग्लिश में मिल गए हैं वो हिंदी में भी मिलेंगे। तो इन द नेक्स्ट ईयर आपकी पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, इंग्लिश के वीडियोस की भी और हिंदी के वीडियोस की भी। तो कोई भी बच्चा नाराज नहीं रहेगा कि सर हमें ये नहीं मिला या आपने अदर पार्टी को ऐसा क्यों दिया, ऐसा कोई नहीं रहने वाला, ठीक है। AAI का कोर्स इसी चैनल पे कराऊंगा बच्चे, इसी चैनल पे कराऊंगा, क्रिएट्रिक्स पे ही, टेंशन मत लो यार। देखो जितने एग्जाम बच्चे आपके आते रहते हैं ना, आप वो एग्जाम्स मुझे बताते रहा करो, ठीक है, आप मुझे बताते रहा करो, मैं आपके लिए जो इनिशिएटिव हो पाएगा आई विल अरेंज। अब ऑल्टरनेटर का स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट दिया है, मैक्सिमम डीसी कंपोनेंट। देखो यार ये वाला मैं बताता हूं, बहुत इजी सवाल है, याद करो, मैंने आपको ना एक चीज डिराइव कराई थी, अगर आपको याद हो, ऐसा हमने डिराइव किया था, है ना। तो बेटा मैक्सिमम डीसी कंपोनेंट, मैक्स डीसी कंपोनेंट कितना हो सकता है? डीसी कंपोनेंट पहले वाला होता है ना, ये हो सकता है Vm बाय मॉड Z। Vm क्या होता है यार? √2 टाइम्स द RMS वैल्यू। RMS वैल्यू तो 1 पर यूनिट हो गई, और Z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0.1, ठीक है। तो आंसर विल बी, क्योंकि Z की मिनिमम वैल्यू यही आएगी ना, XD डबल डैश, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, द आंसर विल बी बी। श्वेता 2022-23 के लिए लगवाएंगे एनालॉग बाय कामेश सर इन हिंदी, डोंट वरी अबाउट इट। 2021 में बेटा इतना टाइम नहीं बचा कि कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कोई नया लाया जाए, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज का। अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी। बेटा नेक्स्ट ईयर में भी ना आप लोगों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन अब आप लोग यार ये सोचो कि 2021 से पहले ये भी आ जाए वो भी हो जाए, तो यार इतना थोड़ी हो सकता है, इतना थोड़ी हो सकता है, सोचने वाली बात है। अभी मेरी पूरी टीम रोज YouTube पे पढ़ा रही है, तब हम इतना कवर कर पाए हैं। तो ये चीज सोचो यार, इस समय पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डाल भी दिया, अब जो बच्चे 2022 वाले हैं वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, और 2021 वालों के लिए वो वेस्ट हो जाएगा। तो यार फिर ऐसा काम क्यों किया जिसमें कि सबका भला ना हो? 2022 वालों के लिए अभी कम से कम नहीं तो 13 महीने हैं, तो उनको तो हम 21 के बाद भी करा सकते हैं ना। श्वेता नहीं बोला मैंने, श्वेता ही बोला है बेटा।
ये गांव वाला एक्सेंट मेरा नहीं आता, श्वेता करके, श्वेता है ना। अरे बेटा YouTube पे बहुत कुछ आएगा, YouTube पे इतना कुछ आएगा, संभाले नहीं सब लेगा तुम लोगों से। बट कम से कम यार अटेंड तो किया करो। अभी देखो YouTube पे पावर सिस्टम चल रहा है, बट कितनी कम जनता अटेंड करती है। अब हम लोग तो अपनी तरफ से फुल मेहनत कर ही रहे हैं। क्या आ रहा है भाई आंसर, जल्दी से बता दो। ऑप्शन सी देख लेते हैं। 4 alternators आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट कैरिड बाय सर्किट ब्रेकर। देखो अब यहां फॉल्ट आया, अब देखना इस जनरेटर का करंट तो डायरेक्टली चला गया। अब बच्चे देखो बाकी जनरेटर्स का ऐसे 3 करंट चले, ये तीनों करंट यहां से ऐड होके सर्किट ब्रेकर से होते हुए फॉल्ट में आए। 3 करंट चले और सर्किट ब्रेकर से होते हुए फॉल्ट में आए। ठीक है, तो यानी सर्किट ब्रेकर का करंट कितना होगा, 3 जनरेटर्स का करंट होगा 1/J.5, तो -J6 पर यूनिट। वेरी गुड, समझ आया ना। सर्किट ब्रेकर में बेटा, सर्किट ब्रेकर में आपको पहले जनरेटर का करंट जाएगा ही नहीं, वो तो डायरेक्टली फॉल्ट में घुस जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो -J8 लगाए होंगे तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सर्किट ब्रेकर का पूछा है, फॉल्ट का नहीं। अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। व्हाट इज द स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट दैट द ट्रांसफॉर्मर ड्रॉज। ट्रांसफॉर्मर कितना स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट बेटा ड्रॉ कर पाता है, ये पता लगाना है, ये आपको पता लगाना है। कम ऑन एवरीबॉडी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत इजीली कर दोगे। और बच्चों आपने एक चीज देखा कि बहुत सारे लोग आए हमारा मोराल तोड़ने के लिए, बहुत सारे लोग आए हमें डीमोटिवेट करने के लिए, लेकिन कितना टिका मोटिवेशन, कितना टिका, एक दिन, ठीक है, एक दिन टिका। तो बेटा ऐसा ही होता है, आप लोग तो तैयारी में लगे रहो। जो लोग आपके रास्ते में आने की कोशिश करेंगे दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ बेटा, क्योंकि मोटिवेशन जो है ना, देखो एक चीज जान लेना, मोटिवेट आपको मैं कर सकता हूं, लेकिन वो मोटिवेशन 1 या 2 दिन टिकेगा। लेकिन जो आपके दिल की फीलिंग है, जो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है ना यार, वो लाइफ टाइम टिकता है, वो लाइफ टाइम स्टैंडिंग है। और किसी के अगेंस्ट कुछ करना, ये कभी किसी का इंटरनल मोटिवेशन नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है। तो इसी चीज को ना अपनी तैयारी में डालो। जब तक आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे ना कि सर बहुत डाउन फील हो रहा है, आप मोटिवेट कर दो, तो बेटा वो 1 हफ्ते बाद तुम फिर वहीं खड़े होंगे, मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं, समझ रहे हो। लेकिन अगर अंदर से एक मकसद है ना आपके पास लाइफ में, एक पर्पस है कि कुछ कर दिखाना है, तो बच्चे वो मोटिवेशन ना, ये समझ लो गेट निकालने के बाद भी चलता रहेगा, गेट निकालने के बाद भी कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ का पर्पस है, उसको कोई नहीं आपसे छीन सकता। तो बच्चे जो आपका सपना है ना, उस पे 100% अधिकार सिर्फ आपका है, उस पे ना मेरा कोई अधिकार है, ना इस दुनिया में किसी और का। तो वो चीज जो आपको अंदर से पावर देगी ना, वो पावर आपको कहीं से भी नहीं मिल सकती। तो सपने को देख के चलना, उस सपने को देख के चलना, अपने पर्पस को देख के चलना, अपने पर्पस को देख के चलना कि आपने शुरुआत क्यों की। जब कभी एक दौड़ में बेटा थकने लगो, जब कभी एक दौड़ में आगे बढ़ते हुए थकने लगो, हमेशा माइंड में एक थॉट ले आना, माइंड में हमेशा एक थॉट ले आना कि बच्चे किस रीजन से आपने ये दौड़ शुरुआत की थी, ठीक है, कब आपने ये दौड़ शुरुआत की थी और क्यों शुरुआत की थी। तो जब आपके पास ये रीजन में क्लैरिटी होगी ना, ये विजन में क्लैरिटी होगी, तो बच्चे मेरे जैसे ना 10 टीचर आ जाएं, मेरे जैसे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आपका सपना, आपकी तैयारी, आपकी जर्नी चलती रहेगी, ठीक है। तो यू डोंट नीड मी टू क्रैक गेट, समझ रहे हो ना, मैं आपकी जरूरत नहीं हूं बेटा, मैं तो बस एक साधन हूं, मैं तो बस एक साधन हूं। मेरी जगह कोई और होता तब भी आप रैंक ला सकते थे, मेरी जगह कोई और होता तब भी आप रैंक ला सकते थे, क्योंकि बच्चे मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन आपकी रैंक में 50% है, नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरी पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन मिला के अगर हमने 20% से 25 भी कर दिया ना,
बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मेजर कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपका होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने सक्सेस, अपने फेलियर के लिए, ठीक है। और फेलियर जैसी वैसे कोई चीज होती नहीं है, लेकिन क्या होता है सक्सेस और लर्निंग। तो आप सक्सेसफुल होगे या फिर एक और अटेम्प्ट दोगे, सब चीजों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो और आप ही करके दिखा सकते हो। तो बेटा हम तो बस क्या है, हम तो बस एक गाइडेंस है, हम तो बस आपके लिए एक रिसोर्स हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको असिस्ट कर रहे हैं, आप हमें असिस्ट नहीं कर रहे हो बेटा। आप लोग स्टार्स हो, आप लोग सुपरस्टार हो, और आप ही लोगों को इस लाइफ में नाम कमाना है, क्योंकि जितना आप रैंक निकाल लोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे बेटा। हम तो यही हैं, हम अगले साल भी पढ़ाते दिखेंगे, लेकिन बस ये आपकी जर्नी में ना एक बूस्ट देके आपको आगे कर देंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमारा रोल ही नहीं है, समझ रहे हो ना। चाह के भी इससे ज्यादा रोल नहीं निभा सकते। तो बच्चे आप लोग सुपरस्टार हो, तो आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। बाकी जितना सपोर्ट लगेगा ना साइड से वो हम देंगे, वो हम पक्का करेंगे, ठीक है। गुरजीत बेटा बिल्कुल सही किया, अगर तैयारी नहीं है तो डीमोटिवेट होने से अच्छा है कि रहने दो उस साल का एग्जाम। अब देखो, इट ड्रॉज अ स्टेडी स्टेट करंट ऑफ, देखो यार अगर ये आपका जनरेटर का ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस है एंड इट इज शॉर्टेड, ये है J.1 पर यूनिट और इधर वोल्टेज है 1 पर यूनिट। तो दिस करंट विल बी टेन इंटू 250 एम्पियर। सिंपल। ड्रॉज बोला है ना, ड्रॉज बोला है, तो ड्रॉज का मतलब है प्राइमरी करंट निकालो, प्राइमरी करंट निकालो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। वैभव बेटा ये जो आप कह रहे हो ना टॉर्क बढ़ने पे स्पीड घटती है, बेटा ये होता है लोड का टॉर्क, ये होता है लोड का टॉर्क। लोड का टॉर्क का क्या मतलब है, जो लोड का वजन है, जो लोड का अपोजिशन है, तो लोड की जो अपोजिशन है अगर वो बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्पीड घटेगी। टॉर्क इन अ मशीन रिप्रेजेंट्स द लोड दैट इज कनेक्टेड टू द मशीन। इफ यू इंक्रीज द लोड ऑन द मशीन देन डेफिनेटली इट विल रन स्लोअर एज कंपेयर टू अर्लियर। अगला बच्चे, अगला क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी। मौमिता ये बोला था ट्रांसफॉर्मर बेटा कितना करंट ड्रॉ करेगा, कितना करंट ड्रॉ करेगा यानी कितना करंट खींचेगा। अब कितना करंट खींचेगा वो तो प्राइमरी पे होगा। श्वेता बेटा नेक्स्ट ईयर के लिए मैं आपकी मशीन्स की प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस वाले वीडियोस ऐड कर दूंगा। इस साल हम लोग थ्योरी ही रिकॉर्ड कर पाए थे तो उतना डाल दिया था। नेक्स्ट ईयर वील ऐड क्वेश्चंस एज वेल एंड वील कंप्लीट दैट प्लेलिस्ट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ रेडी है। बस एक बार मैं ये 2021 वाले बच्चों से थोड़ा सा फ्री हो जाता हूं ना, तब आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। चलो भाई, फार एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आ रहा है, आपको यह बताना है बेटा फॉल्ट एमवीए कितना है, फॉल्ट एमवीए कितना है। चलो, और वैसे यार एक चीज देखो, अब कुछ बच्चे तो हैं जैसे श्वेता समझ रहा है कि भाई डीपीपी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने देखा है डीपीपी में सबसे कम बच्चे आते हैं। जो क्वेश्चन वाले सेशन होते हैं ना उसमें बहुत कम बच्चे आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है यार, प्रॉब्लम ये है कि अपने देश का माइंडसेट ऐसा बन गया है कि मसाला चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को। अगर पढ़ाया जाए, उनकी तैयारी कराई जाए ना तो बहुत सारी जनता कट जाती है। और बच्चे यही चीज आपको याद रखनी है कि आपका कंपटीशन किससे है। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो इस सेशन में बैठ के आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे इस सेशन में बैठ के आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, वो बच्चे आपका असली कंपटीशन है। वो बच्चे आपका कंपटीशन नहीं है जो कि एक अंट शंट सेशन में बैठ गए, 10-10 हजार बच्चा आ गया, मोटिवेशनल में 15,000 बैठ गए। नहीं बेटा, उनसे टकराव नहीं है। अपना कंपटीशन पहचान के चलना है, अपना कंपटीशन आपको पहचान के चलना है। जब अपने कंपटीशन को पहचान लोगे ना
तब उसे बीट करने की एबिलिटी भी आएगी। क्या आ रहा है आंसर भाई, क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। देखें, देखो यार यहां पे ना बेस एक एज्यूम कर लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि दो चीजों में बेस 150 दे रखा है, तो मैंने भी यार बेस ले लिया 150 MVA। अगर बेस 150 ले लिया तो जनरेटर की रिएक्टेंस का बेस बदलना पड़ेगा। कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। इसको अगर मैं 150 पे लेके आऊं फ्रॉम 100, तो इट विल बी 0.3 पर यूनिट, 0.3 पर यूनिट। अब देखो यार, जनरेटर का 0.3 हो गया, फिर ट्रांसफॉर्मर का 0.1 हो गया, ट्रांसमिशन लाइन का 0.15। अब फॉल्ट आया यहां, तो बच्चे देखो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट है ना, तो इसमें बस पॉजिटिव सीक्वेंस ही होता है करंट, 1/0.55 ये आ गया। अब शॉर्ट सर्किट MVA का पर यूनिट वैल्यू I पर यूनिट के बराबर होता है 1/0.55। तो व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट MVA, दैट इज 1/0.55 इंटू 150, ठीक है, 272.72 MVA। तो आंसर विल बी सी, द आंसर विल बी सी, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो यार। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ये लोडेड कंडीशन का सवाल है। ये अब ना आपके लिए मैंने लोडेड कंडीशन का क्वेश्चन डाला है, यानी जब जनरेटर में फॉल्ट आने से पहले लोड लगा था। तो अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूं। कल काफी बच्चों का डिमांड था कि सर इस पे एक क्वेश्चन दिखाओ। देखो, a 3-phase 50 Hz generator is rated 500 MVA 20 kV with XD double dash 0.2. It supplies the purely resistive load of 400 megawatt at 20 kV. Load is connected directly across terminals of generator if all phases are shorted simultaneously. तो देखो यार, ये ना आपका जनरेटर है, यहां पे ना बेटा आपने एक प्योरली रेजिस्टिव लोड लगा रखा है। इसकी पावर इसने दी है 400 मेगावाट और 20 kV। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे की फॉल्ट एनालिसिस पर यूनिट में करते हैं, तो बेस मान लेता हूं। बेस मैंने मान लिया 500 MVA एंड 20 kV। तो वोल्टेज कितनी आ गई, 1 पर यूनिट आ गई। पावर 400/500.8 पर यूनिट आ गई। समझ आया, पावर 400/500.8 पर यूनिट आ गई। अब वोल्टेज है, करंट है, पावर है, और बच्चे साथ में पावर फैक्टर है, क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड है। करंट निकाल सकते हो ना। ये ध्यान रखना, पर यूनिट सिस्टम में कोई 3 का फैक्टर नहीं आता, कोई 3 का फैक्टर नहीं आता। ये करंट हो गया यार 0.8 PU, करंट हो गया आपका 0.8 पर यूनिट। एक बार मेरे पास करंट आ गया तो ये तो बिफोर फॉल्ट हो गया ना। अब हमने क्या बोला था कि ड्यूरिंग फॉल्ट क्या करना है। ड्यूरिंग फॉल्ट अपने को क्या करना है, सर्किट में से EMF हटा देना है और यहां लगा देना है J.2, ठीक है। अब इसके बाद ये जो रेजिस्टिव लोड था, इसकी जगह नेगेटिव वोल्टेज लगानी है जो पहले थी। पहले 1 पर यूनिट थी ना, अब आपने -1 PU लगाया। ध्यान से समझो, जो भी वोल्टेज पहले थी यानी 1 पर यूनिट, तो बेटा उसका नेगेटिव लगाना है, उसका नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो अब हमने उसका नेगेटिव लगा दिया यार, तो देखो करंट ऐसे बहने लगेगा। अब ये कितना आएगा यार, IF आएगा -J5। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जो दो रिजल्ट आए उनको ऐड कर देना, तो 0.8 -J5, तो mod IF
ये आएगा 5.06 पीयू। अब समझ आया जो एल्गोरिथम कल समझाई थी, जो एल्गोरिथम कल समझाई थी, समझ में आया? समझ में आया भाई सब लोगों को? हमने कल एल्गोरिथम के अंदर ये देखा था कि सिस्टम में से ईएमएफ हटा दो, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लगा दो और वोल्टेज का नेगेटिव कनेक्ट कर दो। अब जब आपने वोल्टेज का नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, उससे जो करंट आएगा और जो पहले करंट था, दोनों का रिजल्टेंट आएगा आपका टोटल फॉल्ट करंट। टोटल फॉल्ट करंट। तो सौरभ बोल रहे हैं एक बार फिर से, देखो सौरभ, पहले ना ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में था, यहां कोई फॉल्ट नहीं था, इसमें मैंने करंट निकाल लिया, इसमें मैंने करंट निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, ईएमएफ हटा दिया और जहां फॉल्ट आया है वहां पुरानी वोल्टेज का नेगेटिव लगा दिया, पुरानी वोल्टेज का नेगेटिव। तो पुरानी वोल्टेज का जो नेगेटिव लगाया दैट वाज -1। फिर करंट निकाला और दोनों करंट को सम कर दिया। अमन बेटा ये भी कन्वेंशनल मेथड ही है, ये कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। थेवेनिन्स मेथड इज अ वेल डिफाइंड मेथड ऑफ फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, ये हर किताब के अंदर डिफाइंड है। और आपको पता है 2020 के अंदर ही इसका सवाल आया था। उन्होंने क्या पूछ लिया था कि ईएमएफ बता दो। कैसे करते, देखो क्वेश्चन तो 2020 में आया, ईएमएफ पूछा है, ये करंट आ गया ना, ये करंट आ गया। अब यहां से लेके यहां तक अगर केवीएल लगा दें, कैसे? एक्चुअल सिस्टम तो ये है ना यार, ये तो हमारा मेथड है, ये तो हमारा मेथड है। एक्चुअल सिस्टम क्या है आपका, उसमें ना एक स्टेप और लगना था, बस उसमें बस एक स्टेप और लगना था। एक्चुअल सिस्टम आपका ये है। तो बेटा जब ये फॉल्ट करंट आ ही चुका है आपके पास, ठीक है, ये IF1 कर लो। जब ये फॉल्ट करंट आ ही चुका है तो आप केवीएल लगा के ईएमएफ भी तो निकाल सकते हो, केवीएल लगा के ईएमएफ भी तो निकाल सकते हो। अमरनाथ मेरे भाई थैंक यू फॉर सजेशन। इस क्लास के बाद बिल्कुल मैं आपका सजेशन फॉलो करने वाला हूं, लेकिन पहले क्लास निपटा ले, है ना। वैभव बेटा इस पे अलग से डिस्कस करेंगे, तुम्हारा ये जो टॉर्क और स्पीड वाला डाउट है, बट अभी पावर सिस्टम की क्लास में इस पे टाइम वेस्ट करना बेकार है ना। चलो अगला क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेटेड शॉर्ट सर्किट एमवीए एट बस बार्स ऑफ जनरेटिंग स्टेशन ए is 1500, another station B is 1200. They are interconnected by a line. चलो बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, कम ऑन। एक एक बस का आपको फॉल्ट एमवीए दिया है यार। देखो होता क्या है ना, होता क्या है मेरे बच्चों, कई बार ना आपको सिस्टम का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस नहीं दिया होता, उसके बदले आपको वो दिया जाता है कि फॉल्ट एमवीए, और बेटा उस फॉल्ट एमवीए से आप रिएक्टेंस निकाल लो, फॉल्ट एमवीए से रिएक्टेंस निकाल लो। अमरनाथ मेरे भाई एक चीज बताओ, स्टोरी कुछ भी हो बेटा, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग रैंक लाना चाहते हो, आप लोग एक अच्छी नौकरी करना चाहते हो, आप लोग अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहते हो, आगे एक अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, ये सब चीजें आप लोगों की एक डिमांड है ना। ये एक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी, और इसको फुलफिल करने का एक ही तरीका है, मेहनत करें, है ना। जितनी मेहनत करोगे बेटा लाइफ में उतना आगे जाओगे। तो बेटा इन सब चीजों में पढ़ के किसी भी हालत में तुम अपने लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचते, समझ रहे हो। कल को यार एक चीज सोचो ना, आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हो यार, आप सब लोग दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हो, और फिर इन सब चक्करों से अगर आप अपने लक्ष्य से डेविएट कर गए तो किसको ब्लेम करोगे लाइफ में? मुझको करोगे, किसी और इंस्टीट्यूट को करोगे, खुद को करोगे, किसको करोगे? ठीक है, किसको करोगे बेटा? सोचने वाली बात है, समझ रहे हो ना। तो बच्चे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर ध्यान दो, रेदर देन आसपास क्या चल रहा है। बहुत कुछ चलेगा। अच्छा आपने कभी ये देखा है रेस में जो आदमी दौड़ता है, ध्यान से सुनो, सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल है। रेस में जब कोई दौड़ता है, जैसे यूसेन बोल्ट है, ठीक है, यूसेन बोल्ट है, जब वो रेस में दौड़ता है बेटा, कभी देखा है गर्दन इधर उधर घुमा के चेक कर रहा हो? नहीं, वो एक दिशा में दौड़ता है।
जब कोई एक दिशा में दौड़ता है ना बेटा, तभी वो बाकियों से आगे निकलता है। जो सबको देखता हुआ चलता है बेटा, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए लेजर फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अब आ जाओ, देखो इसके अंदर क्या है कि बेस MVA इज 100 MVA। तो बेटा देखो S पर यूनिट 1 इज 1500/100। और देखो जैसे अगर किसी को ये लगता है कि यार मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की फिर भी मैं पीछे रह गया, बेटा ये किसने बोला मेरी मेहनत खत्म हो गई? बताओ। मैं तो नहीं मानता मैं मंजिल तक पहुंचा हूं, मैं तो अभी भी बेटा जर्नी में ही हूं, मैं तो अभी भी जर्नी में हूं। और मेरी जर्नी जब खत्म होगी जब मैं जज करूंगा वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट। अभी तो बेटा स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल जब तक चलेगी जब तक मारेंगे एफर्ट। एक दिन हो सकता है मैं भी सक्सेसफुल बन पाऊं, बट अभी तो स्ट्रगलिंग पीरियड है ना। चलो ऋषभ मेरे भाई, तुम्हारा पीपीटी मैंने देखा था बट कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना दिया था तुमने। अब देखो यार, यहां 2 आपके पास बसेस हैं, मैंने ना बेसिक एज्यूम कर लिया है। यार देखो बच्चा पार्टी, आप लोग क्यों किसी को गाली देते हो? एक चीज बताओ, अगर कोई बच्चा भटका हुआ है, किसी कारण से परेशान है, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम रेदर देन पुश देम अवे। देखो इनको ना एक रिएक्टेंस से जोड़ा है 1 ओम की, ये ध्यान देना यूनिट पे, ये ओम्स में है, ये बेटा ओम्स में है। राहुल बेटा 38 के बाद के सारे पीडीएफ कल आपको टेलीग्राम पे भी और कल आपको बिटली वाले लिंक पे भी सब जगह मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब देखो ये रिएक्टेंस को ना मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, XT में बोल देता हूं पर यूनिट में। 1 बाय वोल्टेज कितनी है 33 kV। जरा बताना यार कितना आ रहा है? 100/33 स्क्वायर, 100/33 स्क्वायर। बच्चों एक बार मुझे टेलीग्राम पे रिमाइंडर डाल देना, मैंने रिव्यू तो किया आज, सब लोगों के सबमिशंस को मैंने रिव्यू किया है। अगर मेरे से कोई मिस हो गया होगा तो आई विल सी दैट अगेन, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे फॉल्ट आया है ना, तो अब क्या करना है अपने को? देखो इधर से तो डायरेक्ट करंट आ जाएगा और बेटा इधर से करंट थोड़ा सा घूम के आएगा, इधर से घूम के आएगा। 1/1/15 प्लस 1/1/12 प्लस 0.0918। या 20.71। तो देखो शॉर्ट सर्किट MVA कितना आया? 20.71 × 100। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। समझ आया ना? समझ आया? बहुत बार बेटा, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आपको ये रिएक्टेंसेस ना देके शॉर्ट सर्किट MVA दे देता है, वहां से रिएक्टेंसेस आपको बनाना पड़ता है। चलो अगला ट्राई करो भाई, जल्दी जल्दी ट्राई करो, अब टाइम खत्म हो रहा है। दर्शन बेटा मैंने खुद माना था बेस, क्योंकि आंसर एक्चुअल वैल्यू में मांगा था। तो जब कभी आंसर एक्चुअल वैल्यू में मांगे तो बेस कैन बी ऑफ योर चॉइस, बेस कैन बी ऑफ योर चॉइस, क्योंकि वापस आपको एक्चुअल वैल्यू में आना ही है, और जब वापस एक्चुअल में आओगे तो बेस का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। अतुल बेटा बात ब्रेन वॉश की नहीं है, बात ब्रेन वॉश की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की है। मुझे लगता है कि IIT JEE की जो फील्ड है थोड़ी सी वहां पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। और गेट में भी ऐसा नहीं है यार, काफी लोग काफी प्रोफेशनल हैं, काफी लोग काफी प्रोफेशनल हैं।
मैं आज तक जितने भी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूं, जितने भी लोगों से जुड़ा हूं, तो आई हैव सीन क्वाइट अ गुड काइंड ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म. अच्छा है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं. चल, 3 फेज फॉल्ट हो रहा है भाई पॉइंट P पे, यहां पे आ रहा है फॉल्ट. अब आपको क्या दे रखा है? ये तो कल जैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने लगाया था भाई. मैग्नीट्यूड ऑफ सब ट्रांजिएंट करंट इन फॉल्ट, इसमें टाइम नहीं लगेगा. सिद्धेश मेरे भाई, एक छोटी सी चीज है, देखो लाइफ को व्यू करने का ना एक सिंपल सा नजरिया देखो. डिसलाइक में भी बेटा लाइक आता है, डिसलाइक में भी लाइक आता है. तो जो बच्चे डिसलाइक भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली कर तो लाइक ही रहे हैं, समझ रहे हो, कर तो लाइक ही रहे हैं, बस उनका लाइक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो तुम तो टोटल सम देखो ना, लाइक प्लस डिसलाइक, कितने बच्चे इस कंटेंट से फायदा ले रहे हैं. चलो अब देखो यार, 25 MVA है और ये है 5 MVA. ठीक है, तो देखो बेस हम मान लेते हैं यार, बड़े वाला ले लेते हैं 25 MVA. इस बेस पे मोटर की रिएक्टेंस क्या होगी? 0.2 1 पर यूनिट. ठीक है, 1 पर यूनिट होगी. अब यार ये जनरेटर की हुई 0.15, फिर ट्रांसफॉर्मर की हुई, कितना दिया ट्रांसफॉर्मर का? 0.1. ठीक है, और फिर हर मोटर की है 1 PU. अब देखो यार, यहां पे ना 4 करंट आएंगे. एक तो जनरेटर से आएगा, एक इस मोटर से डायरेक्टली, एक इन 3 मोटर्स का भी आएगा भाई. तो टोटल करंट फॉल्ट में कितना जाएगा? एक जनरेटर का 1/0.25 और बेटा 4 मोटर्स का 8 पर यूनिट. तो IF अगर आप निकालोगे 8 पर यूनिट से तो बेस 25 MVA है. और फॉल्ट किस रीजन में आया? जहां वोल्टेज है आपकी 6.9 kV, जहां वोल्टेज है आपकी 6.9 kV. ठीक है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें बेटा? वीडियो के एंड तक रुको, मैं बताता हूं. ठीक है, वीडियो के एंड में मैं बताता हूं. चल, बहुत बढ़िया, समझ आ रहे हैं ना अब इस टाइप के क्वेश्चन? मंजुनाथ बेटा कल मिल जाएंगे आपको आज तक के सारे नोट्स, डोंट वरी. वोल्टेज बेस क्यों चेंज करेंगे मधु? देखो बेटा ये 13.8 है, ये 13.8 बाय 6.9 है और ये 6.9 है. तो देखना बेस तो सही चल रहा है ना, बेस तो सही चल रहा है. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हम लगा ही चुके हैं. चलो फिर, तो बेटा ये सारा हमारा खत्म हो गया सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस. ठीक है, अब बच्चों आपके लिए प्लस पे नया बैच आ रहा है, प्लस पे नया बैच आ रहा है फ्रॉम 21 दिसंबर, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. और मैं जनवरी में प्लस पे आपके लिए लेके आ रहा हूं नेटवर्क, विशाल सर सिग्नल, और बाद में उस बैच में शंकर सर, कामेश सर, सब लोग जुड़ जाएंगे. ठीक है, और बेटा ECE का भी सेम बैच आ रहा है. ठीक है, ECE का भी सेम बैच आ रहा है 21 दिसंबर से. अगेन यू कैन यूज द कोड अंकित ESE टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. ठीक है, अब देखो अगर आप अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर का आपको फीस लगेगा 27,225, 1.5 ईयर 34,650 और बेटा 2 ईयर 39,600. इसके अलावा आइकॉनिक के लिए जाते हो तो 1 ईयर का फीस लगेगा 45,225 और 2 ईयर का 66,600.
ये बेटा मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, सो स्टे अपडेटेड। ठीक है अमन बेटा, एक बार लिंक जाके चेक कर लेना, बैचेस का नाम मैंने आपको दे दिया, यू विल गेट ऑल डिटेल्स। और बेटा ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, देखो ये लिंक आप ब्राउजर में डाल दो जो मैं लिख रहा हूं अभी, गेट AIR1, नहीं तो गेट AIR1 टेलीग्राम में सर्च कर लो, यू विल बी एबल टू ज्वाइन मी। ठीक है अब देखो हमारे अदर चैनल्स, मैकेनिकल, सिविल, देन तेलुगु, SSC JEE, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। तो बेटा विशाल सर स्टार्ट करेंगे ना जैन में, बोला तो सिग्नल लेके आ रहे हैं जनवरी में। ठीक है सो थैंक यू एवरीबॉडी, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना यार, सब्सक्राइब करना, और बच्चा घंटी जरूर बजा के जाना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। बट जाने से पहले आपके लिए एक बार कॉम्बैट की डिटेल सुन लो। कॉम्बैट बेटा 16 दिसंबर को शाम 6 बजे होने वाला है, बहुत आग लगा देने वाला कंपटीशन होने वाला है, बढ़िया प्राइजेस हैं, एप्पल लैपटॉप, एप्पल आईपैड, ईयरफोन, सब कुछ मिलेगा बेटा। उसके अंदर 16 दिसंबर को 6 बजे कॉम्पीट करना है, उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है। कॉम्बैट में एनरोल करते वक्त आपको कोड लगाना है अंकित ESE। थैंक यू एवरीबॉडी एंड लेट्स सी द कॉम्बैट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.